request Piku's producers, Mr. N.P. Singh, Mr. Ronnie Lahiri, Miss Sneha Rajani to please join us on stage along with the writer of the film, Juhi Chaturvedi. Can I please have all of you all on stage, please? Ladies and gentlemen, a big round of applause. Could we please have the mics distributed? This Deepika से दीपिकू. But you did call me that on set. I think ये नाम जो है ये बहुत ही एक टैलेंटेड राइटर मेरे राइट में बैठी हैं जूही चतुर्वेदी. ये उन्हीं का लिखा हुआ फिल्म है. ये आइडिया भी उन्हीं के दिमाग से आया था. सो आई थिंक ये उन्हीं ने ये नाम दिया था एंड आई रियली लाइक्ड इट एंड सो दैट्स व्हाई नाम पीकू. Hi Deepika, this is Ishan from News Express. This side. दीपिका आपसे जानना चाहता था कि इतनी सारी फिल्मों का प्रमोशंस आज तक हम लोगों ने देखा है, इतने सारे इनवाइट्स हमें आते हैं डे टू डे कि आप आइए, ट्रेलर लॉन्च है, लेकिन आपकी फिल्म का जो इनवाइट आया वो वाकई में अद्भुत था. एक वीडियो आया, मैसेज आया और उसने बताया कि फैमिली के साथ आइए. तो ये आइडिया किसका था पूरी तरीके से फिल्म प्रमोशंस का, क्योंकि कई जगह ऐसा आ रहा है कि आपका ये आइडिया था इस फिल्म को प्रमोशंस में. I think somewhere we have all contributed in whatever way possible. I think it stems from the idea of the fact that the film itself is a very, very personal journey, of Piku and Baba, and even in the moments that you see between the characters, I think it's more than the story, it's really about the characters. So even in terms of our communication, I think we've tried to keep it as intimate and as personal as possible. And this was one of the ideas that we came up with, and we hope all of you liked it. Yeah, sure. दीपिका एंड अमित जी, आपके लिए सवाल है. आप दोनों की केमिस्ट्री हमने ऑन स्क्रीन तो देखी, बट इन रियल अगर हम बात करें, हाउ इज़ योर रिलेशन विथ योर डैड, एंड अमित सर आपका रिलेशन कैसा है विथ योर डॉटर? जी बहुत अच्छा है. सब जी बहुत अच्छा है. और फिल्म के दौरान ऐसा लगा कि जिस दिन हम सब की शूटिंग ख़त्म हो गई, ऐसा लगा कि ये परिवार जो है वो बिखर गया है. और बड़ा दुख हुआ हम सबको, कष्ट हुआ कि अरे अचानक हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे. इस तरह का एक वातावरण बनता है हमारे सेट पे और इस तरह का एक एटमॉस्फेयर रहा. तो ये आपको बता सकता है कि कितने नज़दीक हैं हम सब एक दूसरे के. जी मैम, आपके सामने हियर योर लेफ्ट. अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. जी मैम, इस स्टोरी का आइडिया मतलब ऐसे जहन में आया और ऐसे अतरंगी किरदार आपके आसपास भी रहे हैं क्या? कैसे आइडिया आया, ये कहाँ से आया ये तो नहीं मालूम सच में. जहाँ से सारे आइडियाज़ आते हैं सबके वो अच्छे अच्छे वहीं से आया होगा. लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स सच में हैं, मेरे आसपास हैं, कुछ शुजीत के आसपास हैं, कुछ रॉनी के आसपास हैं. तो when the idea came, उसके बाद this discussion, development of these characters, ऐसे एक बाबा, उनकी एक ऐसी लड़की, हमने आपने कई लोगों ने ऐसा देखा है कि there is a girl who is taking care of her father or mother. So one knows these characters somewhere from my own mind, somewhere borrowing from brainstorming sessions that we had together. Ultimately ऐसे अतरंगी character बन गए, and I like little humor in life. तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन भी हो तभी. Hi Deepika, Urvi here, towards your right. Hi. Hi. Deepika, this is the first time you would be playing a Bengali girl in the movie. What preparations did you make for the character? Was there anything specific you had to do?
I think when you're doing a film like Piku and Shujit Sarkar is your director, there's no escaping anything to do with Bengali. He's just, I think for me that was my biggest learning, you know, to be surrounded by Bengalis. Juhi herself is not, but she's grown up. I remember chatting once. Huh? Okay. Yeah, I remember chatting once with her and asking her how come there was all, you know, this influence in the film. Having said that, Piku is still today's girl. You know, there is that influence of being a Bengali and of Calcutta and having grown up there. Piku's grown up in Calcutta. But she's lived most of her life in Delhi. So I think it's just that little influence. And then you have a director who's, you know, he is a Bengali himself. So I think he was my teacher come director. Hi Irfan, guys, this is Prerna from Rajshri. Firstly, I would like to say that the trailer looked amazing. It was really very cute. And Deepika, my question is for you. You've worked with Abhishek and with Amit ji. So who was a better co-star and why? फिर ये परिवार में आप लाज रख लेना बेटी, बाबा की लाज रख लेना, प्लीज. Okay, let's put it this way. I think Abhishek's more. Actually, I can't even say that because he has an amazing sense of humor. What I was going to say is that Abhishek's more fun to work with, but I got to learn a lot from Amit ji. But the reverse can happen also. I think they're just too talented, father and son both. Hi, Deepika. But I have to add to that and say that in the years that I've known Amit ji, outside of work, you know, whenever we've met socially or they've called me over for Diwali or whatever, I think our chemistry just came to us very, very naturally. You know, I remember them mentioning once that I remind them of their daughter. And the way they have been protective of me is the way my parents are with me. You know, I think a lot has to do with your upbringing and things like that. So I think our chemistry that you will see in the film eventually is very, very organic. Hi, Deepika. आप कुछ कहना चाहेंगे अमित जी इस पर? आप कुछ कहना चाहेंगे? दीपिका ने कहा है आपके बारे में और जो भी कहना होगा मैं बाद में कहूँगा इनसे. Hi, Deepika. Alok here from OFM Center में. सवाल मेरा है कि पीकू बनने के बाद असल ज़िंदगी में कोई आपकी तब्दीलियाँ आई हैं माता पिता के साथ उनके ज़्यादा केयरिंग में या कुछ इस फिल्म करने के बाद? I would actually say it's the other way around. I think a lot of Deepika has gone into Piku because I started working at a very young age and moved away from family to pursue my career and lived in Bombay now for the last 6-7 years. So I think automatically वो एक concern तो होता ही है, you know, how are my parents doing health-wise, otherwise, are they happy, are they okay? That concern is always there. Also, Piku as a multitasker, the kind of things that Piku does, when you see the film, you'll see it. You know, parents, work, family, friends, all of that. But still doing it happily. She's not forced to do it. She does it very, very happily and she enjoys doing it. I'm very much like that as a person. But yes, of course, there are moments in the film when we were shooting, you know, I'm sure we've all had our moments where we've thought of our own parents at some point. अमित जी, दिल्ली से कोलकाता तक का सफ़र है, तो कभी ऐसा रोड ट्रिप आपने किया है? कोई जहन में आता है अगर आप जिक्र करना चाहें? रोड ट्रिप मेरा व्यक्तिगत जी कई बार. अभी बताना पड़ेगा. सब बहुत से ऐसे वाक़या हैं, अभी क्या बताएं आपको. लेकिन हाँ, कई बार अपने परिवार के साथ दिल्ली से पंजाब, क्योंकि हमारा वहाँ संबंध है, अन्य जगहों में आगरा हो, मथुरा हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो. जब बाबूजी का तबादला हुआ इलाहाबाद से दिल्ली, तब उस समय हम इलाहाबाद से दिल्ली गाड़ी में आए थे. तो वो एक सफ़र हमें बहुत याद है. हाँ, शुचित जी आपसे एक सवाल है. पहले विक्की डोनर, फिर मद्रास कैफ़े और अब पीकू. क्या आप अपनी फिल्मों को किसी दायरे में नहीं बांधना चाहते? वेरी डिफ़िकल्ट. मालूम नहीं किस जॉनर में मैं जाके
सेटल हूँगा या क्या करना चाहता हूँ। कहीं आइडिया आता है अच्छा तो करना मीन्स सडनली लगता है हाँ ये आइडिया में फिल्म बन सकती है। बट एक फिल्म एक तरह का एक विजन होता है जो आपको देखना चाहिए। सपोज जैसे जूही ने जब मेरे को आइडिया सुनाया तो पता नहीं कहीं एक कुछ टिक कर गया, लगा कि नहीं एक फिल्म बन सकती है इस पे। बहुत ही डिफ़िकल्ट था इस फिल्म को लिखना। इस फिल्म को लिखना उतना आसान नहीं था बिकॉज जस्ट प्योरली कैरेक्टर बेस्ड फिल्म है और हमारी ज़िंदगी के कुछ रिफ्लेक्शंस हैं। एक दिल्ली का परिवार है ये। सो मालूम नहीं किस जॉनर पे कहाँ मैं बांधूंगा अपने आप को, बट आई थिंक बट एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा तभी ताकि मज़ा आएगा। थैंक यू। इरफान, आपसे सवाल था यहाँ पे ईशान न्यूज़ एक्सप्रेस से। इरफान, कैसा था एक्सपीरियंस, क्योंकि जब अमिताभ बच्चन जैसे महानायक आपके संग एक फ्रेम शेयर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट हल्का सा नर्वस होता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था बच्चन साहब के संग काम करने का और क्या फीलिंग थी उस समय? यार महानायक की निशानी यही है कि वो अपनी महानता को आने नहीं देते को एक्टर्स के सामने। आई थिंक मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था और जो मैंने उनको देखा काम करते हुए, मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को अपनी अगर ट्रेनिंग अगर वो कर रहा है या वो सोच रहा है कि एक्टर बनना है उसे, तो आई थिंक उनको बच्चन साहब को ऑब्जर्व करना कंपलसरी है, नहीं तो एक्टर नहीं बन सकता। मतलब उसको वो पता नहीं चलेगा कि वो क्या किस तरह से करते हैं। वो मुझे लगता है कि अभी तक बच्चन साहब के जो रूप हैं वो उनको खुद को भी नहीं पता चले हैं, शायद उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है। वो जिस ओबीडियंट तरीके से, जितनी मासूमियत के साथ डायरेक्टर के विजन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और साथ में प्लेफुल रहते हैं। कई बार क्या होता है ना कि आदमी मेहनत करता है वो बहुत बोरिंग लगता है, दूसरे लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है, लेकिन उनके साथ मतलब इससे बहुत सारा उनका मतलब उससे प्लेफुलनेस बहुत होता है। कई बार ऐसा हुआ जो मेरी ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा वो मोमेंट, कि हम लोग ऐसा वो लाइन बोलते हैं कई बार ना, अपनी लाइन रिहर्स करते रहते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो आप दूर बैठे हो तो कई बार आपको भी वो होता है इंस्टिंक्ट आ जाता है, तो आप यहाँ से बोलने लगते हो, फिर वहाँ से जवाब देने लगते हैं, फिर आप बोलने लगते हो। तो ऐसा कई बार हुआ कि हम अपने बाल ठीक कर रहे हैं, वो उधर अपना काम कर रहे हैं, लाइनें बोल रहे हैं, यहाँ लाइनें कर रहे हैं, बोलते बोलते वो पास में आ गए, हम दोनों सीन करने लगे। दीपिका भी वहाँ बैठी हैं, फिर वो देने लग गई क्यों। तो वो एटमॉस्फेयर मेरे लिए बहुत ही मैजिकल था और बहुत इंस्पिरेशनल था। फैंटास्टिक एक्सपीरियंस for both of them, with whole team, it was an outstanding experience। and बच्चन साहब ने जो कहा कि ये फिल्म ख़त्म होने के बाद I was emotional। हमें लगा कि यार ये हफ्ते भर में शूटिंग कैसे ख़त्म हुई पूरी फिल्म की, and we were all feeling कि ये बहुत कभी ना शेष होए। हाँ बच्चन साहब, गुड इवनिंग। मेरा सवाल आपसे है और इरफान दोनों से है कि दीपिका को देखा कि बहुत पैम्पर कर रही हैं, बहुत इरिटेट कर रही हैं आपको लगता है कि रियल लाइफ में जब दीपिका की शादी होगी तो कितनी अच्छी बहू साबित होंगी अपने ससुराल वालों के लिए? और एज वेल इरफान, आपसे भी यही सवाल है कि कितनी अच्छी वाइफ साबित होंगी ये? मैं पता करके बताऊंगा। भाई साहब, एक बात आपसे पूछूंगा, आपका ब्याह हो गया है? हाँ जी, होने वाला है। जहाँ होने वाला हमसे पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको क्या होता है। बीवी, बेटी, ये सब। मैं ये बोल सकता हूँ कि बेटी तो आई थिंक शी इज द फादर वुड बी प्राउड फादर, इवन द कैरेक्टर चाहे कितने भी क्रेजी हों, लेकिन व्हेन यू विल वॉच द फिल्म आपको लगेगा कि इट्स एन ऑनर और इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव दिस काइंड ऑफ डॉटर, एंड आई थिंक हर फादर आल्सो मस्ट बी हैविंग द सेम फीलिंग। Hi Deepika, I'm Khushbu here. Right. Yeah. Hi, I'm from OI Filmy और जैसे कि मूवी के बारे में है कि इमोशन से इमोशन तक, तो 3 अच्छा सा मोशन आने के लिए टिप्स दे सकती हैं अगर आप सबको। I told you this was going to happen. Next, she's going to ask me my motion का schedule. टिप्स फॉर गुड मोशन, मतलब सबका इमोशन अच्छा रहे, दिन अच्छा निकले। ये सब गोल। It's all in the movie. It's all in the movie. सर इस सब गोल से तो रुक भी जाता है कितनी बार। काफी तजुर्बेदार लग रहे हैं आप। यस सर। आई थिंक सफ़र कर रही हैं शायद वो। इरफान जी, कब देखी? तो हमने भी नहीं देखी अभी तक।
ये किसी इरादे से हमने नहीं बनाई है, लेकिन अगर ये भावना अगर बच्चों में जाती है और दर्शकों में जाती है तो हम इससे बहुत प्रसन्न होंगे। या मुझे लगता है उन्होंने बोला है कि अगर इस भावना से तो फिल्म के पीछे कुछ फिलोसॉफीज होती हैं, बट हम ज्ञान देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप आएँ और मज़ा लें, तो अगर उसमें से कुछ आपको ज्ञान दिख जाता है तो आप लेके जाइए। Hi, on your right hand side, this is Abhishek from NewsX. Deepika, Shujit, Mr. Bachchan, and Irfan, right here. Hi. So the film, majorly highlights a Bengali family, a father and daughter, and also the Bengalis are very keen and very enthusiastic towards sports. And tomorrow we have the semi-finals of India and Australia. So what are you guys doing exactly? Like, are you guys excited for the match? What plans? How do you plan to watch the match? How do you feel India has been performing till now? यार, इस प्रश्न का उत्तर मोशन के साथ जुड़ा नहीं है। सर बिल्कुल मोशन और इमोशन से साथ भी जुड़ा ये हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जानबूझ करके आज रखी ताकि कल हम एकदम फ्री रहें उसे देखने के लिए अपने मैच को। इरफान जी, Deepika, could you please also add on something for Team India? Whatever Baba says. Irfan. if क्या सवाल क्या था आपका? How do you feel as Team India? नहीं नहीं, क्या मैं एक चीज़ बता, मुझे पता नहीं मैच का, मैं बता सकता हूँ बंगाली फैमिली की कहानी है और यूपी की फैमिली की भी कहानी है और मैंने एक लाइन बोली है इस फिल्म में कि दुनिया में दो ही स्पीशीज़ होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, एक बंगाली और एक नॉन बंगाली। सो मैं चौधरी हूँ लेकिन बंगाली चौधरी नहीं हूँ फिल्म में। सो फिल्म में इरफान जी, towards your right, left. Irfan ji, first of all, congratulations for your Haider, शुक्रिया। as you are part of जी, your जी, जी। team. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि how was the experience with Kolkata and Deepika? Excellent, outstanding. It was. I felt like I've been Kolkata for many times, but this is the first time I discovered some aspects of Kolkata, which will stay in my memory till I live. It's beautiful. The main thing, the beautiful thing about Kolkata is Kolkata retains the ruralness. जो बाहर के लोग आते हैं वहाँ और जो रहते हैं छोटे छोटे गाँवों से, वो उसको रिटेन करता है, वो शहर उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर देता। सो बहुत भोलापन है लोगों में। मैंने क्राउड को इतना ज़्यादा खुश होके किसी को देखते हुए नहीं देखा। पता नहीं क्यों इतने खुश रहते थे वो, सारे इतनी भीड़ खड़ी हुई है, सब खुश हैं। आई डोंट नो कहाँ से वो खुशी आ रही थी उनकी। एंड देयर वर सम ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस एंड आई विल रिमेंबर ऑल माय लाइफ। इट वाज फैंटास्टिक। अमित जी, मेरा सवाल आपसे Sorry, है। but we will have the last two questions from the media, so please. अमित जी, आरती सक्सेना, मेरा सवाल आपसे है कि आप पुत्र भी रह चुके हैं और पिता भी रह चुके हैं, तो कभी इस तरह की कोई बात, कॉन्स्टिपेशन, जो आपकी बेटी ने बोला हो व्हाट इज दिस डैड, या आपने बोला पिताजी आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ आपकी लाइफ में? जी नहीं। अमित एक मिनट। अमित जी, आपसे सवाल है, आप अपने शुरुआती दिनों में कोलकाता में रहे, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि उसको आपने इम्प्लीमेंट किया हो शूटिंग के दौरान? जी, मेरी पहली नौकरी जो थी वो मैंने कलकत्ते में की और 8 साल में वहाँ रहा और आता जाता रहता हूँ। वो वातावरण जो है वो कभी भूलता नहीं है। तो चाहे वो भाषा हो, चाहे वो वहाँ का वातावरण हो, जैसा कि अभी इरफान कह रहे थे, जब कभी भी मैं तो अपने जितने भी सह कलाकार हैं उनसे यही कहता हूँ कि जब कभी भी आप थोड़ा सा अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे हो, कलकत्ता जाइए। वहाँ की जनता जो है वो इतनी पैशनेट है कि वो आपको एकदम जागृत कर देगी। और जितने भी साल मैंने वहाँ गुजारे और जो कुछ भी मुझे वहाँ ज्ञान हुआ, वो सब कुछ थोड़ा बहुत उसका अंश जो है वो आप शायद फिल्म में देखेंगे। और क्या कहें, कोई भी एक पुरानी जगह जहाँ आप रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, वहाँ पर वापस जाना बड़ा अच्छा लगता है। हमेशा पुरानी यादें सब ताज़ा हो जाती हैं। और जब भी मैं कलकत्ता जाता हूँ, क्योंकि हमने 8 साल वहाँ गुजारे, इसलिए जितने भी जगहों पर मैं रहा, जहाँ मैंने काम किया, जिन लोगों से मैं मिलता था,
जो मेरे साथ काम करते थे, मेरे जो बॉस थे, उन सब के घर में अभी भी जाता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ, उनको अपने यहाँ बुलाता हूँ, बड़ा अच्छा वातावरण रहता है। All right, that'll be the last question, but before that, मैं वहाँ का जमाई बाबू हूँ, जैसा कि आपको पता होगा अगर आप बंगाली हैं, और मेरी अर्धांगिनी जो है वो बंगाली है, तो ये रिश्ता तो टूट ही नहीं सकता है। last question, but before that, 1 minute, just before that, can I please have the mic passed to Sneha, ma'am? Could we? It's one question. Fine. All right. So we'll move on to the last question. Please take your name. Emotional connect of Bengali. of the of पीकू। देखिए पीकू आप जैसी एक लड़की हैं जो फिल्म में होते हैं, जैसे इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी बॉम्बे में, मुंबई में जैसे आप हैं, काम कर रही हैं आप यहाँ पे, आपके घर पे शायद पेरेंट्स होंगे, लेकिन आपका मन इधर है। इन केस आपका शायद कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स के बारे में सोच रहे होंगे, किसी के बारे में, शायद इस शहर में भी नहीं हो। सो ये हर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में किसी भी काम करने वाली जो लड़के या लड़की हों, उनके साथ रिलेटेबल है। सो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल ज़िंदगी के जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये फिल्म वही डील करेंगी। स्पेशली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर में एक वर्किंग गर्ल के साथ क्या होता है। सो दिस फिल्म डील्स विद दैट कैरेक्टर एंड पीकू इज दैट। All right, that's. I'm What sorry, were you but asking that's. about the bindi and? Yeah. See, the bindi element What is a very design question? element. What is the question? बेसिकली मैडम ये पूछना चाह रही हैं कि आप ब्याह कब करने जा रही हैं? Okay, I think every person, man or woman, piku or otherwise. When she's going to get married? Yeah, I think every. देखिए मैं आपको क्विकली बोल देता हूँ, आप शायद वो बिंदी के बारे में पूछ रहे हैं। पोस्टर में जो बिंदी आया है, बिंदी का मतलब जो है वो शक्ति होता है। सो वो हमने सोचा है कि शक्ति को उस बिंदी के साथ करें। Thank you very much. तीसरा जो नेत्र है यहाँ पर होता है, इसलिए उसको हम उसका अभिषेक करते हैं। They will now. I don't think any of us have shared it with anyone else. Now that we've launched it, as soon as we leave from here, we're going to share it with everybody. Yeah, I think it's not just with me and my father, but I think every daughter and father will relate to what Piku and Baba go through, because they're very, very relatable characters, very relatable situations. And it's what all of us go through in our lives at some point, you know, right from growing up to working to taking care of your parents. And like I said, women, at the end of the day, all of you here today are working women, you know, but we also multitask. We have to take care of our homes, we take care of our parents, we still have a social life, you know, you want to go out with your friends, like you were asking, you want that little time to yourself also, where you have that little moment in the morning, maybe after your shower, you're getting ready, just to see if you're looking presentable or not. Every woman wants to look good. So there's all these elements that we've sort of captured, you know. So I think it's not just between me and my dad, but I think every girl will relate to all these characters. All right, ladies and gentlemen, we're done. नहीं, अब पूछ लीजिए, पूछ। माइक दे भैया। माइक है आपके हाथ में? बंदी कर दिया उन्होंने। हाँ बोलो। तो इस ट्रेलर के अपार्ट में लेकिन एक फिल्म जब बनती है, आदमी है, एक फिल्म जब बनती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कई सारी एक स्टोरीज भी जुड़ी होती हैं। स्नेहा सुजीत, आपसे आना चाहूँगा, इन तीनों स्टार्स में सबसे ज़्यादा डर आप लोग किससे लगता था हैंडल करने में, कि अब इनको वैनिटी का दरवाज़ा खटखटाया जाए, बुलाया जाए, सेट पे बुलाया जाए, तो सबसे ज़्यादा डर किसका था सेट के ऊपर? ऐसा कुछ नहीं था, आई डोंट थिंक सो। हमने बहुत मज़े से काम किया।
हमारे सेट में सबसे मज़ेदार यही होता है कि हमारे सेट का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, और आई थिंक एक एक्टर को वही चाहिए होता है कि जब वो सेट पे आए तो उसको मज़ा आना चाहिए। तो आई थिंक उनको उसको एक फ्रीडम मिलना चाहिए एक्टिंग करने के लिए। सब एक्टर को, वर्ल्ड के सब एक्टर को यही चाहिए होता है कि एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, हम लोग वही रखते थे। वैनिटी के दरवाजे तोड़ दिए थे इस फिल्म में। We never went only to the vanity. We just keep hanging on set. चिक डली हुई थी उसमें। Thank you very much, ladies and gentlemen. A big round of applause, please, for producer, director, writer, and of course, the star cast of Biku.